اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت شبلی فراز، فاروق حبیب اور حسان نیازی اور دیگر رہنماؤں کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تمام ملزمان کو 19 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا۔ تھانہ گولڈرا میں درج ایک مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ بھارتی آبی جاریت جاری گنڈا سنگھ والا میں درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ دیہاتی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ بھارت سے آنے والا 1,85,000 کیوسک کا سیرابی ریلا جسر سے شاہدرہ لاہور کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سیلابی پانی سے راوی کنارے شکر گڑھ کے سرحدی علاقوں میں فصلوں کو نقصان پہنچا۔ چھٹا میں دل خراش واقعہ، قومی شاہراہ پر آئل ٹینکر الٹ گیا۔ ٹینکر میں آتش زدگی سے ڈرائیور اور کنڈکٹر جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے سڑک کا ایک حصہ ٹریفک کے لیے بند کروا دیا۔ ٹینکر کراچی سے سجاول جا رہا تھا، تاحال آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ سڑک کنارے درختوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ فتح جنگ میں ٹول پلازے پر چھریاں چل گئی۔ حملے کے 3 اہلکار شدید زخمی، محمد تابش، اشرف اور عنایت اسپتال منتقل۔ جھگڑا نول پلازہ اہلکاروں کی بدتمیزی کی وجہ سے ہوا۔ گاؤں حتان کے مکینوں کو ٹول ٹیکس سے چھوٹ حاصل ہے۔ اہلکار ٹول معاف ہونے کے باوجود مقامی آبادی سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ کشمور میں 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود وابجہ ہسپتال کے ایم ایس گڈو منیر احمد بازیاب نہ ہو سکے۔ ایم ایس کی بازیابی کے لیے ملازمین کا قانونی گیٹ کے سامنے دھرنا۔ روڈ بند ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا کہ کشمور میں بدامنی بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر کو کلینک سے اغوا کر لیا گیا۔ ملازمین خوف میں مبتلا ہے۔ شام ہوتے ہی گڈو بازار ویران ہو جاتا ہے۔ مظاہرین کا ضلع بھر کے تمام مکھیوں کو فوری بازیاب کروانے کا مطالبہ۔ علی پور پولیس نے عوام کو چوروں اور ڈاکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ شہر میں آئے روز ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں معمول بننے لگی۔ سٹی کونسلر کے بھٹے پر ڈاکوں کا دھاوا، نقدی موبائل فونز لوٹ کر فرار۔ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ شہریوں نے ڈی پی او مظفر گڑھ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ اور
मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो गई। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 13 से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी और इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया। आइंदा चंद रोज तक पंजाब का मौसम बेहतर होने का इम्कान। मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल से गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 20 से 21 जुलाई के बाद तेज बारिश की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल भाई और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद। बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान को IMF से करीब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मौसूल हो गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि आलमी IMF ने कर्ज प्रोग्राम के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दी है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलने हैं। IMF का प्रोग्राम 9 माह का है। 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे। इसहाक डार का कहना था कि तवक्को है कि हमारे कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब डॉलर के दरमियान होंगे। रवा हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। इस हवाले से स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। उनका मजीद कहना था कि कर्ज प्रोग्राम के हफ्ता वार 1 अरब 80 करोड़ डॉलर 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान को मिल जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि IMF के साथ बातचीत में वजीर आजम शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा है। उनके अलावा हुकूमती मौशी टीम ने भी मुश्किल और कठिन सफर में भरपूर साथ दिया है। दूसरी जानिब PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। PTI हम ख्याल ग्रुप ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाब के बाद बाइकॉट का ऐलान किया था, जिसके बाद हाजी गुलबर खान तन्हा उम्मीदवार रह गए थे। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल थी। इन्हें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आज होने वाले इजलास में मौजूद 19 अरकान ने वोट दिए। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर से है। तो नवंबर 2009 के इंतखाबात में JUIF के टिकट पर मुंतखब हुए। 2009 में पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत में वजीर सेहत रहे। हाजी गुलबर खान को 2015 में नून लीग के उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी। अहम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए है। अदालत ने चेयरमैन PTI समेत शिबली फराज, फरूख हबीब और हसान नियाजी और दीगर रहनुमाओं के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तमाम मुल्जिमान को 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब भी कर लिया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले के इल्जाम में इस्लामाबाद के थाना रमना के 2 और थाना गोलड़ा में दर्ज एक मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि दौरान समाज चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई है। वकील का कहना था कि चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस साबिक वजीर आजम इस्लामाबाद नहीं आ सकते। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI को अदालत पेश होना पड़ेगा। अदालत ने चेयरमैन PTI समेत तमाम मुल्जिमान को 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब करके केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की सेशन कोर्ट में फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सेशन कोर्ट में पेशी के मौका पर मुखालफिन की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जान बहक हुए हैं।
वाकई की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम सेशन कोर्ट पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जान पर न हो सके। जाबाहक होने वालों को 9 गोलियां लगी। पुलिस की जानिब से वाक़ये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की सेशन कोर्ट में फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सेशन कोर्ट में पेशी के मौके पर मुखालिफिन की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। वाक़ये की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम सेशन कोर्ट पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जान बर न हो सके। जाँ बहक होने वालों को 9 गोलियां लगी। पुलिस की जानिब से वाक़ये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फतेह जंग के नवाही गांवों कतबाल में टूल प्लाजे पर छुरियां चल गई। अमले के 3 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में मोहम्मद ताबिश, अशरफ और अनायत शामिल है। झगड़ा टूल प्लाजा एहलकारों की बदतमीजी की वजह से हुआ। गांव हतार के मकीनों को टूल टैक्स से छूट हासिल है। एहलकार टूल माफ होने के बावजूद मुकामी आबादी से बदतमीजी से पेश आते हैं। तीनों जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े से आपको अपडेट कर रहे हैं कि फतेह जंग के नवाही गांव कतबाल में टूल प्लाजे पर छुरियां चल गई। अमले के 3 एहलकार शदीद जख्मी। जख्मी में मोहम्मद ताबिश, अशरफ और अनायत शामिल। झगड़ा टूल प्लाजा एहलकारों की बदतमीजी की बाइस पेश आया। गांव हतार के मकीनों को टूल टैक्स से छूट हासिल है। एहलकार टूल माफ होने के बावजूद मुकामी आबादी से बदतमीजी से पेश आते हैं। तीनों जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल कर दिया गया। टोंसा शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस के ज़ेर एहतमाम हेलमेट से आगाही मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत कोर्ट मोड़ के इंचार्ज अरशद ने की। लोगों को हेलमेट के बारे खसूसी लेक्चर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे मुनीर बलोच। डीआईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद के अहकामात की रोशनी में एसपी पेट्रोलिंग पुलिस डेरा गाजी खान चौधरी मोहम्मद शरीफ और डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मोहम्मद जुबैर बंगश की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस कोर्ट मोड़ और पेट्रोलिंग पुलिस भूअर तौसा शरीफ की जानिब से मोटरसाइकिल हेलमेट रैली का इनाकाद किया गया, जिसका मकसद शहरियों को आगाही देना था। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मुमताज़ हुसैन सब इंस्पेक्टर और राय अरशद जावेद ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने तमाम शहरात पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है और कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। आइंदा से कोई भी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। खिलाफ वर्जी पर चालान के साथ साथ कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लिहाजा फर्जशनास शहरी और जिम्मेदार वालिदैन होने का सबूत दें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने से रोकें। कैमरा टीम के साथ मुनीर बलोच। खबर शामिल करें कोट छुट्टा से, जहां पहला शाहीन फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जंगलानी क्लब ने जीत लिया। विनर अप टीम को ट्रॉफी और 1 लाख नकद इनाम से नवाजा गया। मजीद जानते हैं नजीर अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट पे। जी कोटछुट्टा में शाहीन फ्लड लाइट टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट में 40 टीमों ने हिस्सा लिया और 100 से ज्यादा मैच खेले गए। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर महबूब अहमद लशारी, जबकि मावनीन में राना मोहम्मद सलीम कैमखानी और राना शाहिद रजा शामिल थे। फाइनल मैच में मेहमानान ग्रामी में अब्दुल हमीद खान जलबानी, चौधरी
आमिर फारूक, राना कुदरत, शेर एडवोकेट व दीगर थे। फाइनल मैच चोटी ज़ेरी क्रिकेट क्लब और जंगलानी क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। 8 ओवर्स खेलते हुए दिलचस्प मुकाबले के बाद जंगलानी क्रिकेट क्लब ने जीत का टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम कर लिया। मेहमान ग्रामी ने फाइनल मैच जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया। इस मौका पर मेहमान ग्रामी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर महबूब अहमद लशारी ने मेहनत करके टूर्नामेंट को भरपूर अंदाज में कामयाब कराया है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स न होने की वजह से कोटशुटा की नौजवान नस्ल शदीद परेशान है। कोटशुटा में कोई भी स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि कोटशुटा में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स फराहम किया जाए। जहानिया में बज़्म यारा के ज़ेरे तमाम महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुल्क भर के नामवर शोराए कराम ने कलाम पेश करके मेला लूट लिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफार कमर। आदम से आदमी है खुदाया मुआफ कर, आदम से आदमी है खुदाया मुआफ कर, हमसे खता हुई थी कि हम बाप पर गए। बज़्म यारा जहानिया के ज़ेरे एहतमाम शोराए कराम की एक अदबी महफिल सजाई गई, जिसमें मुल्क के नामवर शोराए कराम ने शिरकत की। इस अदबी नशिस्त की सदारत नामवर मेहमान शायर शराज गफूर ने की, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ अतहर शाह ने सर अंजाम दिए। महफिल मुशायरा में मुल्क के नामवर शोराए कराम उफ़कार अलवी, दानिश नकवी और फैज़ान ज़ैदी ने उर्दू और सराइकी ज़ुबान में कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। इस मौका पर मकामी शोराए कराम शहजाद तारक, नदीम, आकाश, असलम, एहसास ने भी कलाम पेश किया। तमाम शोराए कराम अपने अपने मुनफरद अंदाज में कलाम पेश करके महफिल गरमाते रहे। मोबेश 20 से 30 साल पहले कोई मुशायरे इधर मुनक्कद होते थे। उसके बाद जैसे कि हमने पिछले साल एक बहुत ही अच्छा मुशायरा मुनक्कद किया था, उसके बाद हमने ये नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें हमारे तमाम दोस्त जो बज़्म यारा के फेलोज़ हमारे, उन्होंने अनथक मेहनत करके और इस हबस के मौसम में इतने क्राउड को इकट्ठा किया। अपने सदारती खुतबा में मेहमान शायर शराज गफूर ने कहा कि जहानिया जैसे छोटे शहर में अदबी ज़ौक़ दिन ब दिन परवान चढ़ रहा है, जिसका क्रेडिट बज़्म यारा को जाता है। उन्होंने महफिल मुशायरा में अपना खूबसूरत कलाम पेश किया और खूब दाद वसूल की। मुशायरे तो कहीं भी बर्पा हो जाते हैं, लेकिन ऑडियंस को और इस तरीके से ऑडियंस को लाना कि शेर समझने वाले और फिर ऐसे लोगों को बुलाना जिनसे लोग उनको मोहब्बत भी हो, ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं कहूँगा कि अतर शाह को और बज़्म यारा को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जहानिया की जो अदबी फ़ज़ा है वो माशाल्लाह इतनी साजगार है कि यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि कोई शेरी हवाले से कोई भी ऐसा शख्स जो शेर को जानता है और शेरियत को जानता है वो इस इलाके से मायूस हो। हाजरीन ने कहा कि डिजिटल दौर में ऐसे प्रोग्राम्स कभी कभार देखने को मिलते हैं। ऐसी अदबी महफिल का इनेकाद बाकायदगी से होना चाहिए। महफिल मुशायरा में शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेस्क्यू 1122 सियालकोट नारोवाल ने 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी अफसरान ने पेश की। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद ने रेस्क्यू ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस का जायजा लिया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर ने रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इसी जोश और जज्बे के तहत अपने फराइज अदा करते रहे। अपने दायरा कार में आने वाले स्टेशन, गाड़ियों और उनके आलात की इंस्पेक्शन जारी रखे। जी बिल्कुल, आपको बताते चले इस हवाले से कि रेस्क्यू 1122 सियालकोट नारोवाल ने 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी अफसरान ने पेश की। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद ने रेस्क्यू ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस का जायजा लिया। रीजनल एमरजेंसी अफसर ने रिपोर्ट्स पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इसी जोशो जज्बे के तहत अपने फराइज अदा करते रहें। अपने दायरा कार में आने वाले स्टेशन, गाड़ियों और उनके आलात की इंस्पेक्शन जारी रखें। और अब रुख करेंगे उकाड़ा का, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी अवाम तक महफूज खुराक की फराहमी में हम वक्त कोशा। फूड सेफ्टी टीमों ने उकाड़ा में 41 मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। नाकिस इंतजामात और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर 7 फूड पॉइंट्स को जुर्माने आयद किए। मुख्तलिफ ज़ायदुल मियाद फूड प्रोडक्ट्स को मौका पर तल्फ कर दिया गया। 33 फूड शॉप्स को मामूली नकाइस पर इस्लाही नोटिस जारी कर दिए गए। आपको बताते चले कि पंजाब फूड अथॉरिटी अवाम तक महफूज खुराक की फराहमी में हमावक कोशा है।
فوڈ سیفٹی ٹیموں نے اوکاڑا میں 41 مختلف فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا. ناقص انتظامات اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 7 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے عائد کیے گئے. مختلف زائد المعیار فوڈ پروڈکٹس کو موقع پر تلف کر دیا گیا. 33 فوڈ شاپس کو معمولی نقائص پر اصلاحی نوٹسز جاری کر دیے گئے. دوسری جانب محرم الحرام بارے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی بہاولپور ظہیر انور جپا کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے رحیم یار خان، بہاول نگر کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی او سمیت متعلقہ محکموں کے افسران اور ڈویژنل امن کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی. مزید جانیں گے فضل جاوید خان کی رپورٹ میں. حرام کا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور کی زیر صدارت دفتر کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ویڈیو لنک اجلاس کے ذریعے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، شکیل احمد بھٹی، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد، اس کے پولیس آفیسر بہاولپور سید محمد عباس، ڈی پی او رحیم یار خان، ڈی پی او بہاول نگر سمیت متعلقہ محکمے کے افسران، ڈویژن امن کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور نے کہا کہ محرم حرام کے مجالس اور جلوسوں کے انتظامات کو طے شدہ قواعد کے مطابق بر وقت مکمل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ محرم جلوس روٹس کی مرمت، صفائی ستھرائی، سیکورٹی انتظام اور دیگر امور کو مکمل کیا جائے. انہوں نے کہا طے شدہ محرم روٹس اور اوقات کار کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے ڈویژن امن کمیٹی کے ارکان سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ممبر و مراب سے امن و بھائی چارے کا اتحاد درس کی ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ضلع سطح پر کنٹرول روم قائم ہے. اجلاس میں ضلع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز نے متعلقہ ضلع کے انتظامی اور سیکورٹی انتظام بارے آگاہ کیا. اس موقع فقیر حبیب الرحمان اختر، علامہ عبدالرزاق، احسان اللہ رات، عبدالحلیم، علامہ عبدالرسول شرفی، خواجہ محمد رئیس، علامہ شفقت الرحمان، بابر زمان، دیگر ممبران ڈویژن امن کمیٹی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بہاولپور ڈویژن امن کا گہوارہ ہے. امن امان کی فضا کو برقرار کرنے کے تمام مقطع فکر کے افراد اپنا کردار ادا کرتے رہیں. انہوں نے کہا کہ امن کا پیغام پہنچانے کے لیے اس سال بھی قافلہ سفرینان امن روانہ ہوگا. اجلاس میں ڈویژن امن کمیٹی کے رکن حافظ محمد یونس مرحوم کی ارال ثواب کے لیے خاطہ خوانی بھی کی گئی. کیمرہ مین خرم اشتاق کے ساتھ. اور اب بتائیں کہ ٹانک کے کرسچن اسپتال میں مینورٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. سی ایس ٹی اور ینگ 11 کے درمیان فائنل میں دلچسپ مقابلہ دیکھا گیا. ینگ 11 نے آخری بال پر چھکا لگا کر ٹورنامنٹ جیت لیا. اسسٹنٹ کمشنر جمشید عالم نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. رپورٹ کریں گے آدم خان کنڈی. مینیارٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کرسچن اسپتال ٹانک میں کھیلا گیا. اس میچ کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جمشید عالم تھے. کرسچن ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم چودھری وسیم، فہیم خان اور احمد یار مسعود نے شرکت کی. سی ایچ ٹی نے پہلے کھیلتے ہوئے 87 رن سکور کیے، جبکہ ینگ 11 نے آخری گیند پر چھکا لگا کر میچ جیت لیا. میرے منہ میں بات رہ گئی. سہوتروں کو جو ٹیم بھی ونر نکلتی ہے وہ ہم سب کے لیے. دیکھیے ہمارے ضلعی انتظامیہ کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ یہاں پر ہمارے نوجوانان کے لیے تفریحی مواقع پیدا کرے، جس میں ہم ان کے لیے کھیلوں کے مقابلے منعقد کریں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہاں کے عوام کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کے لیے ایک تو صحت افزا ایک ماحول بنایا جائے گا کہ جہاں پہ وہ مختلف قسم کے کھیل اور ٹورنامنٹ وغیرہ کھیل سکیں. دوسرا انعقاد کیا ہے اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کے کھیلوں کے ٹورنامنٹس وغیرہ کا انعقاد ہم کریں گے. شکریہ. مس آصیہ خان نے یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرایا. رپورٹ آپ نے جانے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کشمور میں 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود وابدہ ہسپتال کے ایم ایس گڈو منیر احمد بازیاب نہ ہو سکے. ایم ایس کی بازیابی کے لیے ملازمین کا کالونی گیٹ کے سامنے دھرنا جاری ہے. روڈ بند ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. پولیس کے خلاف نعرے بازی کی گئی. مظاہرین نے کہا کہ کشمور میں بدامنی بڑھ گئی ہے. ڈاکٹر کو کلینک سے اغوا کر لیا گیا. ملازمین خوف میں مبتلا ہے. شام ہوتے ہی گڈو بازار ویران ہو جاتا ہے. مظاہرین نے ضلع بھر کے تمام مخفیوں کو فوری بازیاب کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے. اسی خبر سے آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ کشمور کے علاقے میں 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود وابدہ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر منیر احمد بازیاب نہ ہو سکے. ایم ایس کی بازیابی کے لیے ملازمین کا کالونی گیٹ کے سامنے دھرنا، روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی.
मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि कश्मीर में बदअमनी बढ़ गई है। डॉक्टर को क्लिनिक से अगवा कर लिया गया। मुलाजमीन खौफ में मुब्तला है। शाम होते ही गुड्डू बाजार वीरान हो जाता है। मुजाहिरीन ने जिला भर के तमाम मुखियों को फौरी बाजियाब करवाने का मुतालबा कर दिया। और अब आपको खबर दें कि तांजियावाला में अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम स्पेशल अफराद में मुफ्त व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में ज़िला अमीर जमात इस्लामी पीर मुदस्सिर शाह, मजहर सयाल मियाँ सरफराज चौधरी सलाबत गुजर ने शिरकत की। तकरीब में 40 से जायद माजूर अफराद में मुफ्त व्हील चेयर्स तकसीम की गई। व्हील चेयर्स मिलने पर माजूर अफराद ने अल-खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। ओकाड़ा में पाकिस्तान पोस्ट का अहसन इकदाम। सार्फिन की सहूलत के लिए मोबाइल सर्विस का आगाज कर दिया गया। शहरियों को दहलीज पर सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी। पाकिस्तान पोस्ट को जदीद हदूद पर इस्तवार करने के लिए स्टाफ को मोटरसाइकिलें भी फराहम कर दी गई हैं। इस पर मजीद जानेंगे अदील रशीद की रिपोर्ट में। पोस्ट ओकाड़ा ने अपने सार्फिन को खुशखबरी सुना दी। अब सार्फिन को गर्मी और हबस में किसी भी काम के हवाले से डाक खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान पोस्ट ने अपने सार्फिन की सहूलत के लिए मोबाइल सर्विस का आगाज कर दिया। इलाका में पोस्टमैन अब आपके घर की दहलीज पर डाक टिकट और वो तमाम दस्तावेजात जो डाक खाने के मुतलका होगी पहुंचाएगा। डाक डिलीवरी की सर्विस को मजीद तेज और मुअस्सर बनाने के लिए पोस्टमैन स्टाफ को सरकारी मोटरसाइकिल फराहम कर दी गई हैं। सरकारी मोटर बाइक्स की फराहमी से न सिर्फ डाक डिलीवरी का निज़ाम बेहतर होगा बल्कि पोस्टमैन की मुआशी मुश्किलात का अजाला भी होगा और पेट्रोल के अखराजात भी महकमा अदा करेगा। सीनियर पोस्ट मास्टर उकाड़ा रियाज अहमद ने कहा कि डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट शकील अहमद और PMG पंजाब मुअज़्ज़म मंसूर के वीएन के मुताबिक पाकिस्तान पोस्ट के सार्फिन को सहूलियत पहुँचाना इदारा की अवलियन तरजीह है। रेनाला खुर्द रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान। रेलवे स्टेशन होने के बावजूद कोई भी ट्रेन का स्टॉप मौजूद नहीं। दूर दराज से आने वाले ज़रई और उकाड़ा यूनिवर्सिटीज के तलबा और अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे स्टेशन के स्टॉप को बहाल किया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट में। हुकूमत ने रेनाला खुर्द के रेलवे स्टेशन पर खैबर मेल ट्रेन एक्सप्रेस का जो स्टॉप बहाल था इसे फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से अपील की है कि खुदाया खैबर रेलवे की सवारी है और हम हुकूमत से अपील करेंगे कि खैबर मेल का स्टाफ जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाया जा सके। रेनाला खुर्द स्टेशन जो है यहाँ से सैकड़ों मजदूर लाहौर जो है डेली बेस पे काम के लिए जाते हैं और मुलाजमीन भी यहाँ से अप एंड डाउन कर रहे थे। अब वो उन्हें बसों पे धक्के खाने पड़ते हैं और ऑन टाइम वो ड्यूटी पे भी नहीं जा पाते। ये सारी प्रॉब्लम उन्हें बेचारों को मिल रही है और वापसी पे जब आते हैं तो जाके उकाड़ा में उतरते हैं। उकाड़ा से फिर वो रक्षों वगैरह में घर आना पड़ता है। तो इसलिए काम वाला से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ इस स्टेशन को दोबारा बहाल किया जाए। कम अज़ कम खैबर मेल का स्टेशन तो जो है स्टाफ बहाल किया जाए। पाकिस्तान से कबल से ये रेलवे स्टेशन रेनाला खुर्द कायम है और यहाँ पे हमने अपनी होश में भी बहुत सी गाड़ियों को रुकते देखा। यहाँ पे ना सिर्फ माल बरदार बल्कि मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ यहाँ पे रुका करती थी और लोगों को एक सस्ती सहूलत यहाँ पे मुयसर थी। कुछ अर्सा कबल यहाँ पे खैबर मेल एक्सप्रेस भी आती थी अप एंड डाउन दोनों। यहाँ पे बहुत से जो दो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उकाड़ा एजुकेशन यूनिवर्सिटी और ज़री यूनिवर्सिटी, उसके तलबा तालिबात भी जाते थे, हमारे ताजर हज़रात भी, लोग भी, यहाँ के शहरी भी आते जाते। लेकिन जब से ये खैबर मेल एक्सप्रेस का स्टाफ ख़त्म हुआ है उसके बाद मुश्किलात का सामना है। बच्चे जो हैं तलबा तालिबात धक्के खा रहे हैं, वो बसों में भी धक्के खा रहे हैं, अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, उलझने भी हो रही हैं। तो हमारा हुकूमत वक्त खबर शामिल करें भवाना से, जहां चक नंबर 211 में हजरत बाबा गरीब अली रहमतुल्लाह के उर्स के मौका पर तमाचेदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मैच नजर माची और नसरुल्लाह खिची की टीमों के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के एक दूसरे पर तमाचों घूंसों की बारिश। कबड्डी मैच देखने के लिए शायकीन और अहले इलाका की कसीर तादाद उमड़ आई। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में।
गुरुद्वारा चक्र नंबर 211 तितरावाला में हजरत बाबा गरीब अली रहमतुल्लाह के उर्स के मौके पर तमाचादार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मैच नजर माछी और नसरुल्ला खिची की टीमों के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की एक दूसरे पर तमाचों घूसों की बारिश। कबड्डी मैच देखने के लिए शायकीन और अहले इलाके की कसी तादाद उमड़ आई। दिलचस्प मुकाबले में टीम नजर माछी ने कामयाबी हासिल की। इस मौके पर मुंतज़िम आला मार जफर इकबाल नंबरदार और मार तोकी सिपरा का कहना था कि हम हर साल उर्स मेला लगवाते हैं, यहाँ निज़ाबाजी, घोड़ा डांस, कबड्डी के मैच मुकाबले होते हैं। आज कबड्डी का मैच हुआ है जो कि बहुत बड़ा दिलचस्प रहा है। लोग बड़ी दूर से आए हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इनका कहना था कि कबड्डी हमारा सकाफती खेल है, हमारी ख्वाहिश है कि नौजवान इस तरह राग़िब हों। इनका मजीद क्या कहना था, मजीद जानते हैं उनसे। जी बाबा गरीब अली सरकार ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਵੀਰਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ, ਜਲੇਬੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, बाबे गरीब अली का मेला होंदा जी, हर साल असी करवाने हैं और कबड्डी के मैच होंदे ने और अच्छे तो अच्छे खिलाड़ी आंदे ने। चाटा मुक्का का मैच होंदा है और खूबसूरत लोग खेडते ने और बड़ा मज़ा आंदा है और सारियां दुकानां इत्थे ने और सारे लोग इकट्ठे होंदे ने। हर साल इंशाल्लाह आगे तो आगे बेहतर तो बेहतर। अब रुख करेंगे बहावलपुर का। थाना अब्बास नगर की कार्रवाई, मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 1.5 किलोग्राम चर्स बरामद। मुलजिम की शिनाख्त तस्नीम के नाम से हुई। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात की सप्लाई करता था। DPO सैयद अब्बास ने SHO अहमद चीमा की कारकर्दगी पर शाबाश दी। DPO ने कहा कि कार्रवाइयां ऐसे ही जारी रहेंगी, ऐसे लोग किसी किस्म के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करें उस शरीफ से, जहां ताल्लुकात के शुबा पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाक़या नवाही इलाके हामिदपुर कलां में पेश आया। अकबर ने साथियों से मिलकर यूसुफ को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जहर दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं कि उस शरीफ में ताल्लुकात के शुबा पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाक़या नवाही इलाके हामिदपुर कलां में पेश आया। अकबर ने साथियों से मिलकर यूसुफ को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जहर दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि उस शरीफ में ताल्लुकात के शुबा पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाक़या नवाही इलाके हामिदपुर कलां में पेश आया। अकबर ने साथियों से मिलकर यूसुफ को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जहर दे दिया। दूसरी जानिब नारंग मंडी में म्यूनसिपल कमेटी के अमला की हड़ताल जारी है। शहर गंदगी के ढेर में तब्दील, अवाम का जीना बहाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। पंजाब बार की तरह नारंग मंडी में भी अमला सफाई ने अपने मुतालबा के हक में म्यूनसिपल कमेटी नारंग मंडी में धरना दिया और एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि हम पूरी जिम्मेदारी और फ़र्ज शनासी से अपना काम करते हैं। सेंट्री वर्कर महदूद तादाद में होने के बावजूद नारंग शहर में सफाई का निज़ाम बेहतरीन जा रहा है। ईद उल अज़हा के दौरान दिन रात काम किया। हुकूमत हमारे साथ सौतीली मां जैसा सलूक रवा रखे हुए है। मज़ीद जानते हैं लेबर यूनियन के सदर सलीम रजा मलिक की ज़बानी। जी आज पूरे पंजाब में शहीन बलदियाती फेडरेशन और पाकिस्तान में जितनी भी यूनियंस हैं उन सब ने मुश्तरका एहतजाज किया, जिस वजह से हमारे साथ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सौतीली माह जैसा सलूक किया जा रहा है। तमाम पंजाब के मुलाजमीन के साथ सौतीली माह जैसा सलूक किया जा रहा है। पंजाब में के अलावा जितने भी सूबे हैं उन सबको वफाक की तर्ज का जो इजाफा मिला है वो हमें भी इजाफा मिले, यही हमारे मुतालबे हैं। और जो लिव इन कैशमेंट का मामला है और उसके बाद हमारी सालाना इंक्रीमेंट का मामला है, लिहाजा जब तक ये हमारे सारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तमाम MCs बंद रहेंगी और तमाम अदारे भी बंद रहेंगे पंजाब में जितने भी हैं। ये सब मुलाजमीन का मुश्तरका मामला है, किसी का ज़ाती नहीं है। ये लिहाजा हम लोग वज़ीर पंजाब के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे मुतालबात की तरफ तवज्जो करें और इनको जल्द से जल्द हल करें ताकि ज़्यादा शहरी हो जाएं अब होशियार। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। सिटी और रावलपिंडी की ज़ेरे निगरानी ऑपरेशन। शदीद गर्मी के बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर वार्डन्स के साथ CTO तैमूर खान ने खुद भी फराइज सर अंजाम दिए। मज़ीद जानते हैं नुमान चौधरी से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी सदर के मुकाम पर। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी CTO तैमूर खान की जेर निगरानी हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि सख्त गर्मी के बावजूद भी ट्रैफिक एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रखे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि रावलपिंडी में CTO साहब ने जो हेलमेट के हवाले से मुहिम चलाई है, क्या आवाम की जानिब से इस पर अमल दरामद भी हो रहा है या नहीं? जी, बेहतरी तो काफ़ी आती है। सबसे पहले हम इनको ये बताते रहते हैं कि ये इनकी बेहतरी के लिए है, कोई हमें कोई टारगेट नहीं दिया जाता हमारे अफसरान बाला की तरफ से, IG साहब की तरफ से, CTO साहब की तरफ से। ये इन्हीं को रहनुमाई की जाती है कि ये इन्हीं की बेहतरी के लिए है। अल्लाह ना करे कोई हेड इंजरी हो जाए, कोई मिड इंजरी हो जाए, आपको हेलमेट बहुत सारी जो है ना मेन इंजरी से बचा लेता है। मगर इस वजह जब कार्रवाई कर रहे हैं और अब देखते जा रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने चलान जो है ना हेलमेट चलान के डर से हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं। अभी इस बच्चे को रोका हुआ है, इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इसलिए इसको अभी विदाउट हेलमेट फाइन। पहले इस बच्चे को बता दूं कि ये कोई फ़ोन नहीं करवा रहा, ये बच्चा अभी इजी पैसा से चलान पे कर रहा है, इसका चलान हुआ हुआ है और ये चलान पे कर रहा है। बाकी फ़ोन आते हैं या नहीं आते हैं, अब हमें तो यही ऑर्डर मिला कि आपने किसी के जो है ना सबके साथ एक जैसा रवैया रखना और सबका मुनासिब कार्रवाई करनी है। तो बीच में अगर फ़ोन किसी का आ भी जाता तो उन्हें बता देते कि भाई आजकल कार्रवाई हो रही है, इसलिए माजत कर देते हैं और उनका हम चलान ज़रूर करते हैं। तो ये बताइए, सिर्फ चालान कर रहे हैं या बाइक बंद भी कर रहे हैं? क्योंकि CTO साहब ने तो ऑर्डर किया कि बाइक भी बंद करनी है। सर, जिनके पास लाइसेंस नहीं है या इवन के लर्नर्स नहीं है और जो कम उम्र ड्राइवर है, उनके खिलाफ ऑर्डर मिला कि उनका बाइक बंद करने हैं और उनके पेरेंट्स को बुला के बताना कि आपने इनको क्यों दिया हुआ है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। पर जिनकी वजह से बच्चे के पास अब लाइसेंस है और इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इसको सिर्फ मैं फाइन करके 200 का इसको मैं जाने दूंगा। हेलमेट होता है ना कि ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है, ये 200 का फाइन कुछ भी नहीं होता। लोग फाइन करवा लेते हैं मगर हेलमेट फिर भी नहीं पहनते। मगर ये है कि लोग जो आपको इससे बताने का मकसद ये है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये आपकी हेड इंजरी को मेजर इंजरी से आपको बचाता है। कि आप हेलमेट पहने, आपकी बेहतरी है, इसमें आपकी फैमिली के लिए बेहतरी है। कोई बंदे होते हैं वो हार्ट के भी पेशेंट होते हैं और दिमागी भी, यानी कि दिमागी तौर पे भी वो ठीक नहीं होते, जो हेलमेट पहन ही नहीं सकते, उनके लिए क्या कोई? अच्छा, ये सुबह का आज केस है, सुबह भी एक ऐसे हुआ था, मगर उनके लिए ओपन हेलमेट होते हैं, लाइक उनका आगे से शटर ओपन हो जाता है। उनका ये मसला होता है कि हमें सांस का मसला है, हमें हवा नहीं आ रही, हम शीशे ऊपर करते हैं वो नीचे आ जाता है। उसमें ये प्रॉपर होता है कि जैसे मेरा पास जो हेलमेट है ये उसकी ग्रिल ऊपर हो जाती है, उसमें आप इजीली वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा कोई एस्थमेटिक प्रॉब्लम होता है, जो हार्ट पेशेंट होता है, वो अपने डॉक्टर से लिखवा ले, फिर हम उन्हें जाने देते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमने उनको चला नहीं करना है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि पब्लिक जो है वो 200 का फाइन तो करवा लेती है लेकिन हेलमेट खरीदना जो है वो मुनासिब नहीं समझती, जबकि पब्लिक को ये चाहिए कि हेलमेट का जो हमने मुहिम चलाई है वो सिर्फ इसी हवाले से चलाई है ताकि। कमानिया में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हनान की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम बारे इंतजामात के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे RJ जावेद भट्टी की रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया अब्दुल हनान की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाला से अमन कमेटी के मेंबरान के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौका पर DSP रियाज मिनहास, म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर उमर नवाज खान, तहसीलदार मुनव्वर हुसैन, MSTHQ हस्पताल डॉक्टर एजाज, SDO फेस्को मेंबरान अमन कमेटी राय जियाउल्लाह खान, कारी हबीबुल्लाह, सैयद मोहसन नकवी, मलक अमजे याकूब, मौलाना हसन मुआविया, हाफिज आलमगीर, सैयद सकलैन हैदर काजमी समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर शुरका इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया अब्दुल हनान ने कहा कि इस्लाम हमें अमन और भाईचारे का दरस देता है, इसलिए क़याम अमन के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के लोग अपना कुलीदी किरदार अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि जलूस के रास्तों को क्लियर करवाने के लिए मुतलका एहलकारान काम कर रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। जावेद भट्टी, कोहिनूर न्यूज़, कमालिया। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए शरीफपुर शरीफ में इंतजामात का जायजा लेने के लिए अमन का इजलास हुआ। इजलास में तमाम मुकातिब फिक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे फजल कयूम खान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कम्प्लेक्स शरकपुर में, जहाँ आज अमन व अमान के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मुकातबे फ़िक्र अफराद ने शिरकत की। मीटिंग को असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर फातिमा अरशद ने चेयर किया। आइए उनसे जानते हैं कि वो अमन व अमान के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, हम लोगों ने अमन कमेटी का जो है आज इजलास बुलाया था और उसके अंदर हम लोगों के तमाम जो शरकपुर के तबात फ़िक्र हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे और यही हम लोगों ने उसमें मिल बैठकर तयन किया इस बात का कि किस तरीके से ये जो आने वाले कुछ दिन हैं बेहतर तरीके से, पुरअमन तरीके से जो है ये गुज़र सकते हैं। जो कुछ किसी के कंसर्न्स थे वो हम लोगों ने सुने और जो इंतज़ामिया ज़िले इंतज़ामिया सिक्योरिटी वाइज जो है SHO साहब भी मौजूद थे,
جو ہم لوگ انشور کریں گے کہ یہ جو ہے نا پرامن طریقے سے یہ محرم کا جو ٹائم ہے یہ ہمارا گزرے، اور کسی قسم کا کوئی کنسرن ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم جو ہے نا بہتر طریقے سے یہ ٹائم جو ہے گزار سکیں۔ اسسٹنٹ کمشنر شرکپور نے یہی بتایا کہ شرکپور میں پرامن مٹیاری میں مقامی فنکاروں کا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، اداکار معشوق علی، داد سندھی، دودو منگوانو اور عارف ملا نے شرکت کی۔ مقامی فنکاروں نے نظر انداز کرنے پر نعرے بازی کی۔ جی بالکل، رپورٹ کریں گے علی فیضان۔ مٹیاری سے تعلق رکھنے والے اسٹیج، ٹی وی اور فلمی اداکاروں معشوق علی منگوانو، داد سندھی، دودو منگوانو اور عارف ملا نے مٹیاری میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ناپا سندھ حکومت کی کلچر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے پوری سندھ میں اسٹیج ڈرامے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ناپا مٹیاری ضلع کے حالہ شہر میں اسٹیج ڈرامے کر رہے ہیں، مگر ظلم یہ ہے کہ مٹیاری ضلع میں ہونے والے اسٹیج ڈرامے میں مٹیاری کے فنکاروں کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ صرف چند لوگوں کا ادارہ نہیں ہے، تمام اداروں کا ادارہ ہے جس میں سب کو موقع ملنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈرامے سے پہلے لیٹر لکھ کر ناپا کو کہا ہے اس ڈرامے میں ہم مقامی فنکاروں کو موقع دیا جائے، مگر ناپا نے ہمیں مسلسل آسرے میں رکھا۔ ہمارے فنکاروں میں ٹیلنٹ ہے، ہم نے ٹی وی، اسٹیج، فلم تک کام کیا ہے۔ ابھی ناپا پوری سندھ میں مقامی فنکاروں کو نظر انداز کر کے ایک ہی ٹیم کے ساتھ پوری سندھ میں پروگرام کرنا چاہتی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ستیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے۔ مٹا میں لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ ایبٹآباد، سوابی، سوات، مردان، مانسیرا، ہری پور، مالاکنڈ کے عہدیداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانیں گے فیضل سادہ کی رپورٹ میں۔ آل خیبر پختونخوا لیڈی ہیلتھ ورکر ایسوسی ایشن کا مشترکہ اجلاس مٹا میں منعقد ہوئی، جس میں ایبٹآباد، سوابی، سوات، مردان، مانسیرا، ہری پور، ملاکنڈ اور دیگر ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر آل کے پی کے LHWs کے صدر رفاسیت قمر، ایبٹآباد کے صدر نعیمہ بی بی، سوات کے جان پیروز، ڈاکٹر یاسمین اور جان تاج نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ حکومت کی جانب سے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، جو سراسر ظلم ہے۔ ہماری تو نہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی اپ گریڈیشن کی جاتی ہے۔ ہمارا اپ گریڈیشن، ریگولائزیشن اور یہ جو فیلڈ میں جتنے مسائل ہیں نا، ان کے حل کے لیے ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے۔ یہ نہ کہ ہم شوشا کے لیے ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے، LHW کے لیے ہم نے LHW کے حقوق کے لیے یہ کام کرنا ہے، اور ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے ورکرز انشاءاللہ ہم اپنے حقوق یہ بڑے۔ انہوں نے کہا کہ ایکسٹرا ڈیوٹی الگ سے لیے جاتے ہیں، جبکہ انجیکشن لگوانے کے لیے API ٹیکنیشین موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ڈیوٹی بھی LHW ہی کرتی ہے۔ ریگولائزیشن، اپ گریڈیشن تاخیر کا شکار ہے۔ ہمارے اعلیٰ افسران تک ہماری بات پہنچانے میں آپ ہماری مدد کرتے ہیں، میں آپ کی بہت زیادہ اس بات سے شکر گزار ہوں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے نگران حکومت پرنڈا محمد پناہ میں ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ طلباء کے لیے لائف سیور ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد عمران ساجد نے لیکچر دیا۔ ابتدائی طبی امداد، مرہم پٹی، مصنوعی طریقے سے دل کی بحالی، بہتے ہوئے خون کو روکنے کے متعلق خصوصی ٹریننگ دی گئی۔ خبر شامل کریں دریائے ستلج سے، جہاں دھوپ سڑی کے مقام پر محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات لیں گے نمائندہ قصور میاں کاشف سے، جو اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر عدیل سیال کے ساتھ موجود ہیں۔ جی میاں کاشف، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی شکریہ۔ میں اس وقت قصور دریائے ستلج پر دھوپ سڑی کے مقام پر موجود ہوں، اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور گندا پانی ہے جس کی وجہ سے وبائی امراض جو ہے وہ پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ تو اس حوالے سے پتن کے مقام پر یہاں پر لائف سٹاک کی جانب سے جو ہے وہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر جو دریا کے دوسری سائڈ پر جانور ہیں، یہاں کے جو دوسرے گاؤں ہیں، ان کو گاؤں میں جو جانور ہیں ان کو جو ہے وہ ویکسینیشن بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر عدیل سیال صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر کیا کہیں گے، کتنے کیمپس لگائے گئے ہیں اور کتنے جانوروں کو ابھی تک ویکسینیشن کی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے تلوار پوسٹ کے علاوہ ہمارے 4 جو ہیں پوائنٹس ہم نے لگائے ہیں۔ ایک ہم نے بکی ونڈ لگایا ہے، ایک ہم نے یہ تلوار پوسٹ پہ لگایا ہے،
और इसके अलावा हमारे जो है ना बाकर के और बेटियों उस्मान वाला में भी हमारे कैंप लगे हुए हैं तहसील कसूर के हवाले से। बाकी जो जानवरों के हवाले से ये जो मस्ते की गांव है, इधर हमारी जो कैटल सेंसेस है वो तकरीबन है 1300 जानवर हैं छोटे बड़े। तो उनको हमारा अमला कल गया था, हमारी टीमें, हमने 2 टीमें उधर भेजी थी बना के, उनको सबको हमने हिफाजती टीका जात गल घोटू के। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि छठा में दिलखराश वाकया पेश आया। कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में आतिश ज़दगी से ड्राइवर और कंडक्टर झुलसकर जाँ-बहक हो गए। पुलिस ने सड़क का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद करवा दिया। टैंकर कराची से सजावल जा रहा था, ताहल आग पर काबू पाया न जा सका। सड़क किनारे दरख्तों को भी लपेट में ले लिया है। अलीपुर पुलिस ने अवाम को चोरों और डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर में आए रोज डकैती और चोरी की वारदातें मामूल बनने लगी। सिटी काउंसलर के भट्टे पर डाकुओं का धावा, नकदी मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पेशावर के इलाके गुलबर्ग में अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बेटी ही बाप की कातिला निकली। खातून ने शोहर से मिलकर अपने वालिद वाजिद हुसैन को छुरियां मार कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। इब्तदाई तफ्तीश में मकतूल को जायदाद के तनाज़े पर कत्ल करने का इंकशाफ हुआ। मुल्जिमान से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। थाना पश्त खरा की बड़ा रोड पर बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर दोस्ती करके लोगों को अगवा करने वाला गैंग पकड़ा गया। गिरफ्तार नौसरबाज गैंग का ताल्लुक मर्दान से है। कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान जुर्म का एतराफ कर लिया। मांगा मंडी में डाकुओं और चोरों का राज, दिन दिहाड़े वारदातें मामूल बन गई। पंजाब सुपर स्टोर पर डाकू ने धावा बोल दिया। लूटमार के दौरान अमले और सारिफिन से नकदी मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। यहाँ आपको अपडेट दें, शमाली छावनी के इलाके में 15 साल मिसबा के अगवा का मामला हमेशा की तरह कोहिनूर न्यूज बना। मजलूम खानदान की आवाज, पुलिस का खबर पर एक्शन, मुकदमा दर्ज। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बच्ची की बाजियाबी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इस वक्त चीफ क्राइम रिपोर्टर के साथ बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं ये तमाम मामला क्या है। जी अपडेट कीजिए। आज भी मेरे साथ दफ्तर के अंदर एक फैमिली मौजूद है जिनकी 12 साल जो है वो बच्ची घर से सिलाई कढ़ाई का काम करने के लिए गई थी, लेकिन ताहाल वापस नहीं आई। मेरी आला पुलिस अफसर से बजरिया टेलीफोन बात भी हुई और पुलिस अफसरान ने जो है वो कोहिनूर न्यूज़ की कॉल पर जो है वो फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हुक्म दिया गया है कि बच्ची को फौरी बाजियाब करवाएं। मेरे साथ यहाँ पर मुतासरा फैमिली मौजूद है जो कि इंतहाई परेशानी के आलम है, क्योंकि किसी की भी जो बच्ची है वो अगर घर से चली जाए तो उनके घर में जो है वो बड़ी वीरानी का आलम होता है। मेरे साथ यहाँ पर उसका वालिद मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि आपकी बच्ची घर से चली गई है, आपके मतलब क्या आप कहेंगे कि कैसी परेशानी के आलम में है? हम बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है, हमारी कोई नहीं जान रहा। हम बहुत बड़े, कल 1 बजे का वाक़या है, 1 बजे घर से निकली है, पे फार्म लेके कंप्यूटर फीस तारने, तो उसके बाद वापस घर नहीं लौटी। हम थाने भी 1-5 पे भी काले कर करके थक गए। हमारी कोई नहीं सुना। हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि कब हमारी बच्ची को हेल्प करे। IG पंजाब से हमारी दरख्वास्त है, हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे, हमारी बच्ची हमें मिला दे।
आप हौसला करें, कोहिनूर न्यूज़ आपके साथ है। इंशाल्लाह जल्द बच्ची को जो है वो बाजियाब करवा लिया जाएगा। उसकी वालदा भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी इधर आएं जी, मुझे बताएं कि जाती बार बच्ची ने कोई बताया किसी रिश्तेदार के घर, या बच्ची के पास कोई मोबाइल फ़ोन था, ऐसा कोई फ़ोन आया जिसको लेकर वो घर से चली गई हैं? आपके साथ कोई नाराज़गी थी? नहीं, ना नाराज़गी सी, ना बच्ची के पास कोई मोबाइल सी, कुछ भी नहीं है ऐसे। वो ऐसी है ही नहीं सी। मेरी बच्ची इतनी अच्छी सी, वो जो काम में कहती वो ही करती, ना ऐसे फजूल किसी बाहर निकलती थी, ना किसी जाती थी। जब स्कूल जाती थी तो भाई के साथ ही जाती आती थी। पता नहीं ये कैसे हो गई, ये हमें नहीं समझ आ रहा अभी, क्यों मेरी बच्ची ऐसे गायब कैसे होगी। बच्ची के हवाले से ज़रा बताएं कि कितने बजे वो जाती थी और कितने बजे वो अमूमन घर में वापस आ जाती थी, और जिस दिन घर से वो गई है वापस क्यों नहीं आई, और कितने बजे तक वेट किया? वो एक 1:30 बजे तक गई है। इस दरम्यान मैं तो घर पे नहीं आई सी, मैं काम पे गई हुई सी। भाई है छोटे उसके आए सी घर, मेरा बेटा आया सी। वो उसने 2 घंटा आधा घंटा उसका इंतज़ार किया, वो नहीं आई। उसने फिर मुझे बताया, कहता मम्मा आप ही घर पे नहीं आए। मैं किधर है, पता नहीं किधर है। वो गई सी फॉर्म जमा कराने, तो लेकिन वापस नहीं आई। उधर से पता किया तो उन्होंने कहा नहीं इधर आई ही नहीं दियो। अभी घर में परेशानी है, जाहिर बात है रिश्तेदार भी जो है वो रंग बिरंगी बातें कर रहे होंगे। बहुत बातें हो रही है। हमारे बच्चियों के पास शुरू से मोबाइल है ही नहीं था, सिर्फ वालदा के पास। जब मेरे पास था वो भी मोबाइल ये ऐसे वाले हैं, और हमारे पास मोबाइल किसी के साथ हमारे बच्चों का कोई रब्ता नहीं होता। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ उसने अच्छी पोजीशन से साइंस के साथ दिया है। जिस तरह से हम हर मजलूम की मदद करते हैं, हम भी आपके साथ हैं। कोहिनूर टेलीविज़न की स्क्रीन भी आपके साथ है, और इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करेंगे कि जल्द बच्ची को बाजियाब करवा के जो है वो आपके सामने लाया जाए। हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, हमारी मदद करे, हमारी मदद करे, हमारी बच्ची मिला दे, हम उसके बहुत शुक्रगुजार होंगे। मेरे साथ ये वो मुतासरा फैमिली मौजूद थी जो कि बच्ची की वालदा और बच्ची का वालिद था, जो कि घर से गई है। न जाने किस जालिम ने उसको वर्गलाया है, फिसलाया है, और उसको जो है वो सब्ज़ बाग दिखा के लड़की को अगवा कर लिया गया है, या लड़की अपनी मर्ज़ी के साथ चली गई है। जबकि उसकी फैमिली ने IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, CCPO लाहौर से दरख्वास्त की है हमारी बच्ची को जो है वो फौरी जो है वो बाजियाब करवाया जाए। मुकदमे के हवाले से बताता चलूँ कि कोहिनूर न्यूज़ ने जो है वो इस बच्ची के अगवा का मुकदमा तो दर्ज करवा दिया है। अब देखना यह है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में, कितने घंटों में, कितने मिनटों में जो है वो बच्ची को बाजियाब करवाते। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सरकारी मुलाजमीन का धरना चौथे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन डट गए, मुसाफरात ताहाल ना हो सके। एप्का के सदर चौधरी मुख्तार गुजर की कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू हुई। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कोहिनूर की तमाम टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने इन गरीबों की, मस्कीनों की और बेकस लोगों की मदद के लिए यहाँ पर आहो पकार सुनने के लिए और हुकूमत वक़्त के बेहिस हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, आपके मशकूर हैं। तो मैं लाहौर का सदर हूँ, एप्का लाहौर डिवीज़न का मुख्तार गुजर मेरा नाम है, और आज 4 दिन से हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हमारी माएँ, बहनें, मुलाजमीन सब इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं, और इस हुकूमत की बेहिसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि इन्होंने हमारी जो मराद हमें मिल रही थी 72 साल से, मोहसिन नकवी साहब ने एक नोटिफिकेशन से तमाम हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया है, और वो ख़त्म कर दी गई हैं, और हमें पूछने तक कोई नहीं आ रहा। कल हमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो होम हैं उन्होंने बुलाया था, और रिजवी साहब थे एडिशनल IG, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से एहतजाज ख़त्म कर दें वरना लाठी चार्ज होगा, कोई और होगा। हमने कहा कि वो इस चीज़ से बेहतर है कि हमारे लोग गर्मी से मर रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, कई लोग शहादत हासिल कर रहे हैं, कई फुटपाथों पे ड्रिपें लगी हुई हैं, कईयों की सबस और गर्मी के मौसम में कोई एहतजाज करके दिखा दे। मजबूर आदमी सड़क पर आता है, और ये मुलाज़म मजबूर हो चुके हैं अब कि जहाँ फिर हम मर जाएँ। आपको पता है कि लोग फाका कशियों और खुदकशियों का शिकार हैं, और अपने बच्चों और बीवियों समेत जहर देकर अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। लेकिन हुक्मरान अपनी याशियों और अपनी ताकत के नशे में सिर्फ और सिर्फ अपने कानून जो मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट में कोई गरीब को कानून पास नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ जो कानून बने हुए हैं, जो कुछ मिल रहा है हमें जीने के लिए, एक सत्र सांपने के लिए, वो भी जो ढांप रहे थे उसको भी उतारा जा रहा है। आज हम बिल्कुल, इन्होंने हमें हमारे कपड़ों से हमें
पंजाब फूड अथॉरिटी आवाम तक महफूज खुराक की फराहमी में हम वक्त कोशा। फूड सेफ्टी टीमों के कामों की सईद नगरी बाजार, अलमारियां वाला बाजार समेत मुख्तलिफ मार्केट्स पर छापे, भारी मिकदार में गुटखा और इस्तेमाल शुदा ऑयल बरामद करके तल्फ कर दिया। फूड पॉइंट्स को जुर्माने। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि मामूली नकाइस पर मजीद बेहतरी के लिए 11 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। खुराक का कारोबार करने वालों के पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन पर अमल दरामद करना लाजमी है। लेस्को की सब डिवीजन महमूद बूची ने हिफाजती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया। हेलमेट ना यूनिफॉर्म, हिफाजती इकदाम बिल्कुल जीरो हैं। हुकाम ने मुलाजमीन की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। लाइन स्टाफ की सेफ्टी ही तरसीली निज़ाम की सेफ्टी है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने कहा कि किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल फील्ड में काम करने वाले मुलाजमीन की जान से कीमती नहीं है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुबशर अली जंजोआ से। जी मुबशर, बताइएगा सूरत हाल क्या है? देखिए, डायरेक्टर सेफ्टी की जानिब से मुतअद्दिद बार जो हिदायत जारी की गई हैं भी, अगर कोई लाइनमैन या ALM बतौर हेल्पर इसके साथ किसी 11 kV या LT लाइन पे काम करता है तो दौरान काम ये अपने हिफाजती तदाबीर का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमारी जो कोहिनूर न्यूज की टीम है ये वाज़ह दिखा रही है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है भी एक शख्स LT लाइन को विदाउट दस्ताने पकड़ के काम कर रहा है, जबकि दूसरा जो इनका लाइनमैन है वो बगैर हेलमेट, बगैर शूज के, बगैर बेल्ट के वो 11 kV को पकड़ के काम कर रहा है। ऐसे मतलब वाकयात पहले भी, मतलब अगर इसको करंट लग जाता है या बैकअप आ जाता है या 11 kV से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये जाए वकुआ पे हादसे का सबब बनते हैं। इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे हिफाजती तदाबीर का इख्तियार नहीं किया। इस पे अब देखे क्या फैसला होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी मुबशर, ये बताइएगा कि आपने इन तफसीलात से आला हुकाम को नोटिस में बात लाई है, उनका क्या कहना था इस बात? ईस्टर्न सर्कल के जो सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर हैं उनको ये बात आगाह की है, उन्होंने फिल फॉर इस पे एक्शन लिया है। डायरेक्टर सेफ्टी को बताया गया तो उन्होंने भी फिल फॉर इस पे एक्शन लिया है और ये जो मुलाजमीन है इनके खिलाफ कार्रवाई के जो अहकामात हैं वो सादर फरमाए गए हैं। जी शुक्रिया मुबशर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेलवे प्रेम यूनियन CBA के ज़ेर तमाम स्वीडन वाक़े के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली वॉशिंग लाइन से होते हुए BS ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुए। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मलून गुस्ताख का पुतला नजर आतिश करके अफसरान, मुलाजमीन और मजदूरों ने बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। स्वीडिश सफीर को फौरी मुल्क बदर किया जाए। DS सुफियान, सरफराज डोगर, सदर प्रेम यूनियन शेख अनवर फयाज अहमद शहजाद ने रैली के शुरका से खिताब किया। रिपोर्ट करेंगे अली फारूक। रेलवे प्रेम यूनियन के ज़ेर तमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें रेलवे के सैकड़ों मजदूरों और मुलाजमीन ने शिरकत की। इसके अलावा रैली में डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद सुफियान, सरफराज डोगर के साथ साथ रेलवे के अफसरों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए DS रेलवे का कहना था, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर रेलवे के मुलाजमीन और उम्मत मुस्लिमा सब इकट्ठे हैं। रैली से खिताब करते हुए प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर का कहना था, कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को स्वीडन की हुकूमत फिल फौर सजा दे। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान फौरी तौर पर स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करे। स्वीडन के सफीर को पाकिस्तान से फौरी तौर पर निकाल दिया जाए। किसी को आजादी राय का नाजायज तौर पर फायदा नहीं उठाना चाहिए। रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।